Good morning, everyone. On the behalf of Maharashtra Association of Ayurvedic Students and Doctors, I Dr. Archana Baviskar, PG Counseling Coordinator, Navi Mumbai, extend a warm and helpful welcome to all dignitaries, speakers, and participants to the 104th CME program. Today's clinical session focuses on important and clinical relevant topic PCOD, evidence-based Ayurvedic treatment. We are delighted to have enthusiastic participation from across the country for this enriching academic gathering. It's my great privilege to welcome our respected guest speaker, Professor Dr. Madhura Kulkarni Ma'am, Department of Prastuti Tantra and Stri Rog, Sam University, Bhopal. We also extend our warm greeting to Mass Leadership, Dr. Ramdas Garje Sir, Founder President, Dr. Sujit Dunle Sir, Secretary, Dr. Seema Garje Ma'am, along with all religious coordinator, city coordinator, and respected delegates joined us from across the India. As per tradition of Ayurveda, let begins the academic program by invoking the blessing of Lord Dhanvantari, divine physician. I now invite Dr. Harshal Kotharkar, PG coordinator, Navi Mumbai, to lead us in Shri Dhanvantari Stavam. Okay, thank you. नमामि धन्वन्तरम् आदिदेवं सुरासुरेव वन्दितपादपद्मं लोके जरारोगभयमृत्युनाशं धातारमीशं विविधौषधानां शङ्खं चक्रं जलोकां तददमलुकटं चारुदोर्भिः चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं पठितविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगदवनं प्रौढदावाग्निलीलम्. Thank you. To formally introduce today's invited speaker, I invite Dr. Harshal Kotarkar, PG coordinator, Navi Mumbai. Thank you. Myself, Dr. Harshal Kauthakar, PG Coordinator, Navi Mumbai. It is my great privilege to introduce our esteemed speaker, Professor Dr. Madhura Kulkarni. Ma'am is highly experienced Ayurvedic gynecologist with 32 years of clinical practice and an accomplished academician. She is a Mumbai University topper and gold medalist and also holds diploma in yoga and philosophy. She is currently medical director at Arogyadham Ayurvedic Hospital and serves as a national head of Supraja Garbha Sanskar Arogya Bharati. Ma'am is renowned author of 7 Ayurvedic books, a regular columnist, and has actively contributed through TV and radio platforms like Akashvani and Doordarshan. Beyond medicine, she is ultra marathon runner with multiple achievements, truly inspiring us with her energy has dedication. Perfect blend of knowledge, service and inspiration. I'm inviting with great respect I invite Professor Dr. Madhura Kulkarni ma'am kindly begin her session. Ma'am platform is yours. Thank you. Thank, thank you, Dr. Harshal. We now move to core clinical section of today's program. The topic of today's CME PCOD evidence-based Ayurvedic treatment. This session promises to offer valuable practice approach and evidence-based Ayurvedic perspective in management of PCOD. With great respect and pleasure, I invite our estimated speaker, Professor Dr. Madhura Kulkarni ma'am, to kind begin today's lecture. Ma'am, visual platform is now yours. Hello. Yes, ma'am. Hello everyone.
Hello everyone. Very happy today morning with you all. Am I audible? Yes, ma'am. Yes, hello. Yes, ma'am. Yes. Thank you very much, Mas, Dr. Ramdas Garje, Dr. Abhilasha, for giving me such a nice opportunity to connect with all the eminent doctors of Pan India. It's really great to always getting connected with the people who really works hard for Ayurveda and actually not only Ayurveda but this is Indian system to treat patients. It's really great to discuss about PCOD. Well, day before yesterday, one patient came to me and she was telling me that feeling very low, I'm very feeling weak and irritable, maybe menopausal symptoms. But those menopausal symptoms, she was not very, she was not very be upset of, but she was upset with the cosmetological disturbances, pigmentation, hair loss, everything. So I told her, just ask her history, as all of you know. In gynecology, the history taking is most important topic. So she was just sharing with me, yes, I had infertility problem initially and conceived after certain technological help. And yes, she mentioned I had PCOD. So I asked her whether your family, anyone has diabetes, blood pressure. So she said, no, 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 even now I don't have diabetes. But a typical symptom of endometrial hyperplasia related with the insulin resistance and that got connected me with the PCOS because initially she had a PCOS and the PCOS once continues when the diet regimen or the lifestyle regimen not followed. So it may not be symptomatic, but she had hyperplasia in later age connected with that insulin resistance and for that menorrhagia. And because of menorrhagia, low HB, and the symptoms arose. And she was worried about the symptoms with the skin related diseases. But as an Ayurvedic gynecologist, I was concerned about her basic Rasathatvagni Vikruti. Friends, let us talk about this disease, which is actually hampering the social health since long. It's overdiagnosed most of the times, it's over discussed most of the times, but less practiced in even medical fraternity. How long, up to how extent, and how we actually ignore the basic importance of this metabolic syndrome. Yes, it is related with the metabolism, and we forget it. We forget the agni. We forget the basic fundamental strategies of Ayurvedic gynecology, and we treat only symptom wise or the investigation part wise. Friends, just remember three major shlokas which really enhance my Ayurvedic gynecological clinical practice, which really comes from the root of own Sanhitas. And these three shlokas actually help me to treat thousands of PCOS patients, whether they were symptomatic, whether they were presenting me with their problem, whether they were had some complications or metabolic disturbances. But these three shlokas always help me to reach up to the samprapti, pathophysiology, the exact cause to effect uh, discussion. So first is Rasajam Purusham Vidyat. Rasam Rakshet Pratnata. The basic ovum or sperm related, everything is related with the nutrition, and not only the nutrition but the absorption of the micronutrients. So nutrition part we need not to ignore. We should not never underscore the nutrition part.
Rasam Rakshet Prayatnata. The second most important part I've written at my every slide, baseline, every slide, that हीनयोन्यास्तु बालाय कायं गच्छति शोणितम् परिपक्वशरीरायास्तु कायं योनिं च गच्छति. So this shonita part, which related with the hypogonadals, which related with the basic source of or origin of the hormones which releases, which are the chemical messengers from hypothalamus and the anterior pituitary gland, and these are shown. See, Raja is different, Shonita is different, Artav is different, and every time scientifically it's explained very nicely how and when to intervene with the medicines, with the procedures, with this explanation of Shonita. Shonita is Hina Yonyas to Balaya. Kashyap explains that when the secondary sexual characteristics is not developed when the age is young, this Shonita part goes to all over body. Kayam gachati. And once the maturity comes, it goes to kayam yonim cha. So whenever we want to treat the patient, we need to go to the origin of the problem. Dosha, avastha, and sthana, whether it is kshay, whether it is margavrod, or whether it is vimargagam. Three basic principles of Ayurveda, and it explains each and every pathophysiology of our own PCOS or PCOD. When we are discussing about PCOD, it's related with the target based only symptom wise, lower kind of intensity problem with the menstrual irregularity, sometimes not even the menstrual irregularity, but the PCOS is a syndrome where the metabolic syndrome where the metabolism is truly involved and where we need to understand the santarpanutha or apatarpanutha part of the disease. So that metabolic disorder, अग्निरेव पित्तांतर्गतः शुभाशुभानि कर्मं कुरु. और ये अग्नि ही जो है, ये जो मेटाबॉलिज्म है, यही हमें रस रस से निकला हुआ रज आर्तव, इसी सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट मॉड्यूल देता है. मुझे ऐसा लगता है हर एक को ये बेसिक समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. और दिस बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स we need to understand, and then only we will able to give the proper treatment of the PCOD, or sometimes yes we can treat the PCOS also. It's like iceberg, tip of the iceberg. We can understand patient comes with the presenting symptoms that अरे menses नहीं आता, difficult to treat the amenorrhea. Sometimes menses आता है लेकिन रुकता ही नहीं है. Sometimes hirsutism, sometimes obesity, sometimes male part of the baldness. So everything, cosmetologically, psychologically, emotionally, this PCOD related patients presents with certain symptomatology. Are we treating symptoms again? Being Ayurvedic gynecologists, we need to understand that we should not only treat the symptoms, but we need to treat the basic pathophysiology. And this is my master's life, with which we can understand which dosha is involved. Vata, Pitta, or Kapha, and that dosha also, is it Amashay Samutta problem or Pakvashay Samutta problem? Related with Amashay or related with the Pakvashay? So these things are very important. I think some disturbing sound is coming. My voice is not that much audible. Please confirm. And please confirm how many of you are practitioners. You can, all of you are practitioners, Ayurveda practitioners. Yes, ma'am. Hello? Huh. Yes. So this is very easy to again explain or express certain modalities in specific Ayurvedic terms, because sometimes these doshas gunataha karmataha vikruti occurs. Gunata means
Like I was discussing about Agni Vikruti. So the basically whenever the Agni Vikruti occurs, what happens? What exactly Agni does to your body? Ayurvarno balam swastham utsaha upachaya prabha. So Ayu means life, Varna means color, and discoloration that indicates the acanthosis nigricans related with the PCOD, definitely related with the Agni Vikruti. So dosha is pitta, sasneha, tikshna, ushna, which good is involved directly reflects on the menstrual color, menstrual consistency, menstrual overall, the expression on the body, and it gives you the exact treatment plan. So, which dosha, which avastha, sam or nirama, which sthana, and how to relate it with Shat, Margavarot, or Vimargagaman. Actually, we talk a lot about Margavarot. When Agni is Vikrut or Agni Manda is there, always we think of arm or obstruction. But while talking about PCOD, just remember hypothalamus pituitary ovarian axis and always remember the obstruction in gonadotropin releasing hormones. We always think about thyroid disturbance, but always remember the free thyroid hormones which actually connected with the thyroid. So, main releasing the endocrine gland and the target organ in between the supportive hormonal system always takes care, and we need to focus on those Margavarothajanya hormonal imbalance, and that sometimes gives us a proper medicinal formula which we'll be discussing again. And again, Ksharijanya, sometimes with the uh, discussing PCOS and amenorrhea, many of the times the absence of certain absorption of micronutrients gives rise to Kshay, Vivarga Gaman. Sometimes the doshas are not acting their own role, but they are doing something different role and creating the Vikruti. Like Pitta always do Parivartan or Pachan, but after rasa, when raja means रजक बनना है और रस धात्वग्नि मंद्य हो गया, पित्त की विकृति हो गई, तो समटाइम्स हमें एमेनोरिया को सफर करना पड़ता है और तभी ट्रीटमेंट रस धात्वग्नि मांद्य को देना है. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. So this was the basic thing I think every practitioner need to understand. Next slide please. So it's purely lifestyle related metabolic disorder, obesity, infertility, amenorrhea, menorrhagia, hirsutism, acne. All of us are well versed with these diseases related with the PCOD. Always remember that we need to treat dietary regimen along with the lifestyle to treat the PCOD. That is compulsory. And how the perfect module today we'll be discussing. Always remember that these things we can treat with the simple remedies also. I remember Dr. Kumud Nagaral madam. We formed a group with the Nima people and we gave only Shatipushpa at Rasayan Kal for thousands of girls in their 18th year of girls going to a college, and only Shatapushpa morning along with the lukewarm water with lifestyle modification and dietary advice of course, but the cycle regulation occurred with many of the students. So that is Shatapushpa, only single drug remedy with the evidence of strong evidence of treating Rasadhatvagni Mandya. Next slide, please.
So we'll discuss directly with the patients. I think after the theory part, each and every patient will describe their own symptoms and will discuss about the treatment module. This patient of 22 years old female came to me with the regular menses and she only used to get withdrawal bleeding only. उसको 1 साल से मेंसेस नहीं आया था। अपनी मम्मी के साथ आई, उसके पापा नहीं थे, डिवोर्स ही थी उसकी मम्मी, और वैसे भी अपसेट थी, ओबेस गर्ल, वेरी डिप्रेस्ड विद रेगुलर मेंसेस, और कभी भी होते तो मॉडरेट ब्लीडिंग होती थी। मार्च 22 में उसका एलएमपी था, मेरे पास मार्च 23 में आई थी। बोथ ovaries of course showing multiple small peripheral follicles and endometrial thickness was 8.4 mm, and we started with Yogaraj Gogul. Yogaraj Gogul का इंडिकेशन ही अनार्थव है, अवरोधजन्य अनार्थव, आरोग्यवर्धिनी, चंद्रप्रभा, of course Kumari Asav, and this is a formula Erendashunthi Kada, 0.5 milligram per body kg weight castor oil and 1 pinch of shunti decoction. 1 pinch of shunti, 1 cup of water, make it half cup of water, boil it, add castor oil in it, 0.5 milligram per body kg weight castor oil before, means upon kal, um, at night, 3 nights before food for consecutive cycles. So now she has stopped, but we gave this Arundhati decoction for her for nearly 2 years. Now she is with the regular cycles. She has joined physiotherapy. Very happy and very enthusiastic girl. We even gave her yoga basti 3 cycles and Nasya continuously. So after this treatment with the lifestyle modification, she started doing cycling, and the encouragement from mother. We discussed about her some even psychological issues. Next slide, please. And before treatment, it was regular menses, dysmenorrhea, and after treatment, natural menstruation. After treatment, pain was reduced, and regular menses, March 25. But till the date, she is following with me because she wants to do some project with the physiotherapy along with us, and she was very happy with the treatment. Her mother was also very happy. Purely this amenorrhea, when once the amenorrhea got treated, पीसीओडी में सबसे इम्पोर्टेंट ये केस ने मुझे सिखाया, एक बार सिर्फ थोड़ा सा भी वेट कम हो गया, पीरियड रेगुलर हो गए, तो आगे वो ट्रीटमेंट के लिए लाइफस्टाइल है, डाइट है, सभी सुनने के लिए तैयार हो जाती है। फिर प्रॉब्लम एक रहता है कि बेसिक जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको सुधार दो, क्योंकि बहुत बार डिप्रेशन में जाते हैं पेशेंट, अरे कुछ होता ही नहीं, सिर्फ केमिकल मेडिसिन लेनी पड़ती है। यस, आई एग्री और कन्फेस, समटाइम्स आई ऑल्सो गिव केमिकल विड्रॉल, मीन्स मेडोक्सी प्रोजेस्ट्रॉन, बिकॉज बहुत स्टबॉर्न, अगर वो फॉलिकल है, रप्चर ही नहीं हो रहा है, एस्ट्रोजन निकल ही नहीं रहा है वो एंट्रल फॉलिकल से, तो आगे का सारा ही जो स्त्रीण हार्मोन एस्ट्रोजन वो कम होने के कारण, रसक्षय के कारण, जो एड्रेनालिन फटीग है, डिप्रेशन है, तो पेशेंट इज नॉट विलिंग फॉर द ट्रीटमेंट ओनली। जब तक पीसीओडी से कुछ प्रॉब्लम नहीं है तब पेशेंट को ट्रीटमेंट लेने की जरूरत ही नहीं होती। मेरे पास एक पेशेंट आई थी एट द एज ऑफ 44, उसने मुझे कहा कि मुझे सबको सारा बोला, फिर उसने बोला बाय पासिंग रिमार्क, क्योंकि बहुत डिस्कस है अभी मुझे पीसीओडी भी है। मैं बोली ओहो, तो फिर मैंने डरते हुए पूछा डिलीवरी, हाँ वो डिलीवरी होगी, कब से पीसीओडी रहने का, 3 साल हो गए, तो उसका कुछ भी प्रॉब्लम, उसको कुछ भी नहीं था। तो बॉर्डर लाइन पीसीओडी, मिड लाइन पीसीओडी और सीवियर पीसीओडी, ये भी सारी चीजें होती है, ये सारा ध्यान रखना, ओवर डायग्नोस होने नहीं देना है, लेकिन बस ब्रेकिंग द आइस करना बहुत ज्यादा जरूरी है पीसीओडी में। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो एवरी नहीं, इसकी पहले की स्लाइड, दूसरी वाली एक पेशेंट रह गई अपनी,
पीसीओडी प्लस मेनोरेजिया। पीसीओडी के बाद बहुत बार एंडोमेट्रियल थिकनेस अंदर का बढ़ता जाता है और फिर मेनोरेजिया होता है। एक तो शुरू नहीं होता, एक तो बंद नहीं होता, ये दोनों ट्रीटमेंट बहुत प्रॉब्लम होता है। उसको थोड़ा सा एंडोमेट्रियल बिनाइन पॉलिप भी था और शस्त्र क्षाराग्नि कर्म भी, माउस जानम तो विकाराणाम शस्त्र क्षार अग्निकर्म। तो यहाँ क्षार का ओरली भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला, इसके लिए मुझे पेशेंट दिखाना था। इसका शारीरिक प्रॉब्लम था, हेमोरेजिक सिस्ट थी, मेनोरेजिया था, एमएच बहुत लो था और इसको एक स्पेशल मेडिसिन हमने दिया था जिसमें हम स्वर्णमालिनी वसंत देते हैं ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए 5th डे ऑफ द मेंसेस से 10th डे ऑफ द मेंसेस। इसके साथ वासा गुड़वेल, इसका जो कॉम्बिनेशन है वो कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा मेनोरेजिया के लिए यूजफुल होता है। वो हमने लगभग हजारों पेशेंट को दे दिया है कि वासायाम विद्यमानायाम आशायाम जीवितस्य च। तो क्षयिकासी रक्तपित्ती किमर्थम अवसीदसी। जब तक हम वासा अच्छे से देते हैं तो वासा देने के कारण बहुत बार ये जो ब्लीडिंग डिसऑर्डर है वो अच्छे से ट्रीट हो जाती है। और इसके कारण हम वासा और गुड़वेल गुडुचिक इनका कॉम्बिनेशन डिकॉक्शन में कंटिन्यूस, जैसे मैं पेशेंट को बोलती हूँ कि जैसे हम कुछ शरबत या ऐसे लेते, वसा गुरुची का अगर स्वरस मिले तो अच्छा, नहीं तो फिर काढ़ा कंटिन्यूस उसको देते रहना पेशेंट को। इससे रिप्लेसमेंट भी हो जाता है रस धातु का और ब्लीडिंग रुकने में बहुत ज्यादा मदद होती है। मूड मूड अभी दो हमें डोसेस के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। हम कितने डोसेस पेशेंट को देते हैं और कितना पेशेंट को जरूरी रहता है वो देखना चाहिए। स्वर्णमालिनी वसंत के वक्त भी हम वही सोचते हैं कि स्वर्ण कल्पक कितने काल तक कितने समय तक दे सकते हैं और उसको कभी तक हम टॉलरेट कर सकते हैं। तो ये दोनों ही चीज ये पेशेंट के लिए हमने यूज की थी। कामदूधा है, नागकेशर है, रसपाचक और रक्तपाचक है। ये जो कलिंग का पटोलस्य कटुरोहिणी है या तो चंदनम विश्व भेषजम किराततिक्तम अमृता, ये सारे रसपाचक रक्तपाचक या अस्थि पाचक, ये जो ज्वरघ्न कषाय है उसका गायनेकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में बहुत अच्छा फायदा होता है। क्योंकि मैंने जैसे बेसिक आपको अग्नि कंसेप्ट बोला, रसज पुरुष वाली कंसेप्ट बोली, सेल्युलर लेवल तक माइक्रो सेल्युलर लेवल तक सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम पहुंचने वाली चीजें बताई, उसमें ये रसपाचक बहुत बड़ा काम करता है। और उसके साथ साथ रक्तपाचक भी यहाँ हमने दिया था और इसके कारण बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स हमें मिले थे। स्पेसिफिकली लो एमएच में हमें इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है पाचक, जब भी हम धातु अग्निमांद्य पर काम करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके साथ नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। उत्तर बस्ती भी दी थी और मेनोरेजिया कम हो गया, वीकनेस गिडीनेस कम हो गया, सबसे मेन वो कंसीव हो गया। और आई वांट टू एम्फेसाइज कि 3 महीने या 6 महीने से ज्यादा ट्रीटमेंट को समय नहीं लगना चाहिए इनफर्टिलिटी के लिए। और ये भी 6 महीने के पहले, जबकि लो एमएच ब्लॉक ट्यूब्स ये बहुत ही सारे प्रॉब्लम्स ये करके वो कंसीव हो गई और दैट वाज रियली एनकरेजिंग। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अगेन ये पेशेंट प्राइमरी इंफर्टिलिटी की थी, मैरिड सिंस 5 इयर्स और इसको कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लम्स एक्चुअली नहीं था। ड्यूरिंग जो ब्लीडिंग भी था वो भी रेगुलर था। हमारे आयुर्वेदिक कंसेप्ट में हमेशा हम कहते हैं कि बहिपुष्प अंतपुष्प से उसका परीक्षण किया जाए। जो बहिपुष्प है उसका परीक्षण अंतपुष्प के साथ किया जाए। अगर बहिपुष्प ठीक से आ रहा है, आर्तव ठीक से हो रहा है, गते पुराणे रजसी जो इंटरनल लाइनिंग शेड ऑफ हो रही है वो ठीक से हो रही है, तो बीज बनना, बीज पनपना और के द्वारा गर्भ का पोषण होना, ये सारी पचन पोषण और परिवर्तन चीजें ठीक से होती है। लेकिन कभी कभी पीसीओडी में ये मिसलीडिंग ये रहता है कि मेंसेस तो रेगुलर है लेकिन उसका जो स्राव स्वरूप है उसमें हमें कुछ कमियां दिखती है। ये पेशेंट ने मुझे ये सिखाया कि जो श्लोक हम पढ़ते हैं कि तदार्थवम प्रशंसन्ति यत वासो न विरंजेत, कि जो वस्त्र पर दाग धब्बा नहीं पड़ता है वही आर्तव प्रशंसित आर्तव है। और मासा निष्पिक्ष दाहार्थी, जो मासी मासी आता है और दाह और कुछ भी पेन के सिवा ठीक से आता है
वो आर्तव प्रशंसित आर्तव है। जो ऋतौ भवती आर्तवम है, जो सर्च के बाद ओव्यूलेशन के वक्त आर्तव, जो ऋतु अनुसार होने वाला आर्तव है, उसका प्रभाव इस स्त्राव पर पड़ता है। और यहाँ पे जो वस्त्र का रंजन, यह हम हर एक पेशेंट को पूछना चाहिए, स्पेसिफिकली पीसीओडी के वक्त और इनफर्टिलिटी ट्रीट करते वक्त। तो यहाँ हमने वस्त्र परीक्षण भी उसका किया, तो वहां जो दूषित तत्व था कुणप मीन्स जैसे कुणपगंधी और ग्रंथि युक्त आर्तव, तो उसमें हमने एक ऐड किया था ग्रंथार्तवे पिबेत पाठा व्योष वृक्ष कजम जलम। तो पाठा व्योष और वृक्ष, इसका जल भी इसको ऐड किया था। आप देख रहे होंगे कि हर एक ट्रीटमेंट मॉड्यूल में हमने एक जल, एक स्वरस, एक काढ़ा ऐड कर दिया था मेडिसिन के साथ साथ। क्योंकि ये जो हमें पीसीओडी के ट्रीटमेंट करनी है, लाइफस्टाइल हम बोल रहे हैं, वहां एक ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो तैयार हुआ है, उसके लिए कुछ ना कुछ एंटीऑक्सीडेंट हर्ब्स हमें सप्लीमेंट के तौर देने पड़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। वहां वासा गुरुची दिया था, यहाँ पाठा कुटच गोक्षूर दिया था। और उसके साथ साथ एक ये कॉन्सेप्ट जो मेरा हमने डेवलप किया है हमारे आरोग्य नाम के तहत, वहां पे जो ऋतुनुसार पंचकर्म है, तो पहले 3 महीने पहले दीपन, पाचन, चिकित्सा, काउंसलिंग और ये सारा करने के बाद हम जब पेशेंट तैयार हो जाते हैं तो प्री मेंस्ट्रुअल योग बस्ती, फिर 5वें, 6वें और 7वें दिन में एक सद्यो वमन, और फिर उत्तर बस्ती, मूषक तेल, क्षार तेल, रजन्यादि तेल, बला तेल, फलक घुरुत, ये अलग अलग इंडिकेशन के अनुसार। और सद्यो विरेचन 12 to 14 डेज, ये भी बहुत ही इफेक्टिव ट्रीटमेंट है स्टबॉर्न अनोलेप्ट्री साइकिल्स के लिए। 12 to 14 डेज में जो विरेचन करते हैं। अभी यहाँ एक क्वेश्चन हमेशा मुझे पूछा जाता है कि ये जो वमन और विरेचन है, उसमें शास्त्रोक्त स्नेहपान, संसर्जन क्रम, वहां जो पीरियड रखना चाहिए, वो नहीं रखा जाता। क्योंकि ये जो पंचकर्म है, ये उपयोजित पंचकर्म, इम्प्लीकेशन जो पार्ट है उसका, वो उपयोजित पंचकर्म के अनुसार, अनुभव आधारित पंचकर्म के अनुसार। पंचकर्म मीन्स शोधन, और बीज तक शोधन जाना है, या जैसे मैंने बोला कि सिंड्रोम ट्रीट कर रहे हो या डिसीज ट्रीट कर रहे हो। तो ये डिसीज ट्रीट करते वक्त ये सद्यो वमन कल्पना, सद्यो विरेचन कल्पना हमने यूज की है। योग बस्ती, कभी कभी मात्रा बस्ती भी देते हैं, लेकिन इसका जो काल है, वो जो काल, कफ काल उन्होंने बोला है 5वें, 6ठे और 7वें दिन में, वो कफ काल केन जलेन फलति अनेन इति कफः। जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स हमारे गोनाड से सिक्रेट हो रहे, उधर तक, मूल तक, सूक्ष्मतम भाव तक काम करने के लिए यहाँ से कुछ ब्लॉक निकलना जरूरी है। हमारे नाना जोशी कहते थे कि रक्त पित्त है, अधोक रक्त पित्त है, ब्लीडिंग है, और सिर्फ वमन का ऐसे एक वेग आया, सिर्फ वेग आया, कुछ वमन किया भी नहीं, ऐसे ऊर्ध्वक, अधोक रक्त पित्त को हम ऊर्ध्वक लेके गए, तो वो मेनोरेजिया रुकाने में सहायक होता है। तो स्थान, अवस्था और दोषों का बल, यह देखकर किया हुआ जो सद्यो है कि कफकाल जो है, जब फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन बढ़ रहा है, बीज की वृद्धि हो रही है, तभी ये जो 5वें, 7वें दिन सुबह उठकर सद्यो वमन और दिन भर कुछ लघु अन्न हम सेवन करते हैं, तो वो भी एक रस्थात्मक निमांड की चिकित्सा होती है। और ये 12वें से 14वें दिन विरेचन पे एक 20 पेशेंट का मेरा एक पेपर पब्लिश हुआ है कि जिसमें स्टबॉर्न अनोवुलेटरी साइकिल्स को ट्रीट करने के लिए हमें बहुत ही अच्छा फायदा मिलता है। बीबी का कैप्सूल, शिलाजित और भस्म वसंत कुसुमाकर को लेकर हमने एक फॉर्मूला बनाया है कि जो ट्यूबल ब्लॉकेज में, ओरल मेडिसिन में बहुत अच्छा काम करता है। क्योंकि जैसे क्षयजन्य अवस्था में बहुत बार ट्यूब्स ओपन भी हो गए तो भी उसमें कार्य क्षमता नहीं आती। तो ये जो भस्म है, शिलाजीत है, इसमें ओवम पिकअप की कार्य क्षमता भी आ जाती है। जब क्षार तेल और मूषक तेल का संयोग करके हम उत्तर बत्ती देते हैं और ट्यूब ओपन करने का प्रयास करते हैं, उसके साथ साथ वंगबस में शिलाजीत, वसंत कुसुमाकर का हमें बहुत अच्छा फायदा मिला है। चंद्रप्रभा, त्रिफा, गुड़, ये सारी चीजें आप जानते हो। अरविंद सब, इसमें जो कमल पुष्प है, कमल पंचांग है, तो कमल पंचांग का नाभि पूरण, योनि पीछू, नस्य और कमल पंचांग का प्रयोग,
ये सारी चीज भी कभी कभी प्रोजेस्टेरोन जनित जो गड़बड़ी होती है, जैसे हमारे आयुर्वेद में हम योनि व्यापक में कहते हैं कि जातम जातम विनाशयेत, इम्प्लांटेशन प्रॉब्लम, गर्भ स्थिर नहीं हो पाता, जैसे कंसेप्शन हुआ ब्लीडिंग हो जाता है। और पीसीओडी में इस तरह के मिसकैरेजेस बहुत कॉमन देखे जाते हैं। तो ये बीज उतना प्रभावशाली कभी कभी नहीं बन पाता, तो उसके लिए कमल, यह एक एकल औषध भी बहुत अच्छा काम किया है। इसके साथ मैंने एक पॉइंट यहाँ पे ऐड कर दिया है, योनि पीछू। जब अगर उत्तर बस्ती हम नहीं कर पाते अपने क्लिनिक्स में, सारे समझो ओटी की सुविधा या सारे अपने पास नहीं हो, क्योंकि हमें दूसरे दूसरे इन्फेक्शन, क्रॉस इन्फेक्शन क्रिएट नहीं करने हैं, तो योनि पीछू बहुत ही अच्छे से काम करता है। और जिसमें मूषक तेल योनि पीछू हमें अच्छा काम देता है। कभी कभी सिर्फ सिरिंजिंग और पीछू धारण करने से भी हमने इसमें बहुत अच्छा फायदा देखा है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और यहाँ आप स्पष्टतया देख सकते हैं कि यहाँ हमें ट्यूबल ब्लॉकेज है, हिमोरेजिक सिस्ट है, ओव्यूलेशन डिसऑर्डर है, और यहाँ हमें प्रॉपर कंसेप्शन हुआ है। और अभी उसकी बेटी लगभग मुझे लगता है साल भर की भी हो गई है। मेरे पास वो आती रहती है, वेदा बेबी हम उसको कहते हैं, क्योंकि उसने उसको लिख कर दिया था उसके गायनेकोलॉजिस्ट ने कि आपको कंसेप्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि एमएच भी लो है, ट्रिपल बी ब्लॉकेज है, और जल्दी से जल्दी आईवीएफ करा लो, वो भी डोनर्स oocyte से आपको बच्चा रहने की संभावना नहींवत ही, कम भी नहीं, नहींवत है। डोनर्स ओवम आपको लेना पड़ेगा, और विद इन 6 months ऑफ पीरियड शी कुड कंसीव। और मुझे लगता है कि वो आयुर्वेद का एक विजय है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो ये देखिए, जुलाई और सितंबर में ये कंसीव हुई है। इसका बीटा स्टेज भी बहुत ज्यादा था, तो इतना ज्यादा था, और उसने बोला था कि ये कंसेप्शन होने के बाद वो रिलेटिव थी उसकी जो गायनेकोलॉजिस्ट को शेयर किया था रिपोर्ट भी कि नहीं मैं तो कंसीव हो गई हूँ, तो उन्होंने बोला था 25266 इज टॉक्सिक बीटा एससीजी, और आपको ट्रोफोब्लास्टिक कुछ डिसऑर्डर हो गया, आपको कुछ ट्रीटमेंट दिया गया जिससे ट्रोफोब्लास्टिक डिसऑर्डर है, कैंसरस ग्रोथ भी हो सकती है, सो वी नीड टू इंटरवेन, ऐसा वैसा सारा। लेकिन कंटिन्यूअसली विद द काउंसलिंग, विद द ऑब्जर्वेशन, पेशेंट मॉनिटरिंग, पेशेंट मीन्स पेशेंट्स इन माय माइंड, फिजिशियन और गायनेकोलॉजिकल माइंड, मुझे लगता है साधना हमें वही करनी है कि हमें संयम बढ़ाना है। तो बहुत सारे अभी जब भी इतनी सीनियरिटी आ गई है और सेकंड ओपिनियन देने पड़ते हैं, तो कभी कभी डायरेक्टली बोल देना पड़ता है कि कुछ नहीं हो पाएगा, और कभी कभी होगा, आप धीरज रखो। तो ये जो संयम है, मुझे लगता है ये प्रैक्टिकल इससे चैलेंजेस से आ जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। हर्सुटिज्म ये भी बहुत ज्यादा पीसीओडी से है, और मैं ये सारी केसेस आपको दिखा रही हूँ, वो सारी मैंने की हुई है, और कई सारी पेशेंट्स की प्रतिनिधित्व है। तो इसमें भी एंडोक्राइनोलॉजिकल, जिसको रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, बहुत ही आजकल ये रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी पर डिस्कशन है। और जो एंडोक्राइनोलॉजिस्ट है बेसिकली, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं ट्रीटमेंट्स में, क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट। जो नॉर्मल एंडोक्राइनल, हमें तो मालूम है, हम मेद पेशी को भी एंडोक्राइनल ग्लैंड कहते हैं, तो हम तो ये श्रोणित की संकल्पना भी जानते हैं, और जो एक दूसरे से इसका जो संबंध है इसको भी जानते हैं। ये जो सारा ओव्यूलेशन और इसका सारा कॉम्प्लेक्स सारा सिस्टम पूरी लाइफ अपना चलता रहता है। तो ये जो हर्सुटिज्म है, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस, संतर्पणोत्थ जिसको पीसीओएस बोलते हैं, और इसके कारण आने वाले जो एक्स्ट्रा लोम वृद्धि, वो बहुत ही कठिन हो जाते हैं। उसके लिए हमने कदली क्षार प्लस शंख भस्म का छाछ के साथ फॉर्मूला तैयार किया है, कि जो लोम शातन में उपयोगी होता है। जैसे मैंने बोला कि जो बेसिक कुछ फर्क पड़े वो तो फर्क पड़े, लेकिन सिम्टोमेटिकली भी कभी कभी रिलीफ देना और ब्रेकिंग द आइस करना बहुत जरूरी होता है।
और साथ साथ में तो जो बेसिक पैथोफिजियोलॉजी उसको नष्ट करने में लगना है, क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट के बाद भी कभी कभी अस्टिटिज्म ठीक नहीं होता। लेकिन अपने ये सारे मॉडल के साथ और लोकल एप्लीकेशन के साथ हमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, और मैं ये कह सकती हूँ, लेकिन ये एक याप्य व्याधि है, कष्ट साध्य व्याधि है। ये हम हर्सुलिज्म ट्रीट करते हैं तभी समझ में आता है। बाकी तो सारा एटलीस्ट पीरियड रेगुलर हो जाएंगे, ओबेसिटी कम हो जाएंगी, सारी चीजें हो जाएंगी, सारा ही स्टेबॉन है, मेंस्ट्रुअल रेगुलेटरी हो जाएंगे। लेकिन हर्सुटिज्म, मेल पैटर्न ऑफ बाल्डनेस, एक्ने, ब्रेकिंग डाइस के लिए बहुत मुश्किल होता है, लेकिन एक अदली क्षार ने मुझे बहुत बार मदद की है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ओबेसिटी भी स्टेबॉन है ऑफ कोर्स, और इसमें स्नेहपान का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। स्नेहपान, तिल तैल का स्नेहपान और ओबेसिटीज के ऊपर डॉक्टर मुकुंद सबनीस का बहुत अच्छा काम है, औरंगाबाद के हैं एंडोक्राइनोलॉजी पर, उनका अच्छा काम है, उनसे भी मैंने बहुत चीजें सीखी है। और इसलिए मेरे पेशेंट को भी स्नेहपान जब हम देते हैं तो स्नेहपान से बहुत बार पॉजिटिव थिंग्स होते हैं। जैसे तिल प्लस कृष्ण तिल और गुड़ का लड्डू हमने कई पेशेंट्स को दिया था, जो बोलते हैं मीन्स स्नेहन ही है, लेकिन अपरोक्ष स्नेहन है। तिल, तेल डायरेक्ट नहीं, लेकिन तिल, कृष्ण तिल और लड्डू एमेनोरिया ब्रेक करने के लिए, तो उसके अच्छे रिजल्ट्स आए हैं। लेकिन डायरेक्ट स्नेहपान वर्धित इसमें अगर दिया जाए, और उसके बाद सद्यो सद्यो नहीं बोल सकते, विरेचन या सद्यो विरेचन, तो स्नेहपान पूर्वक अगर विरेचन करते हैं तो बहुत बार स्टबॉर्न अनोबुलेशन ठीक हो जाता है, ओबेसिटी में बहुत पॉजिटिव फर्क रखता है। कुबेराक्ष वटी भी इसमें स्टबॉर्न ओव्यूलेशन में मुझे अच्छा फायदा दी है। शंखवटी मैं 6 6 गोली भी 4 बार देती हूँ, जो कभी कभी डिस्मेनोरिया और ओव्यूलेशन रिलेटेड, या शंक्वेटी स्पेसिफिकली मैं यूज करती हूँ। आप देखिए, आप जब सोनोग्राफी देखते हैं, एक बात जरूर आप ध्यान दीजिएगा कि सोनोग्राफी में जो ओवरीज है, बल्कि ओवरीज हम देखते हैं, लेकिन उसमें कितना फ्लूइड रिटेंशन है, और केन जलेन फलति अनेन इति कफा, ये जो कफ शोथ दूषित आम संचित है, वो कितना हद तक हम कम कर सकते हैं, उसका ऑब्जर्वेशन आप करें। किस किस का ऑब्जर्वेशन करना है? इंसुलिन लेवल्स का ऑब्जर्वेशन करना है। जो फास्टिंग इंसुलिन है, कभी कभी 10 से ज्यादा हो जाते हैं, और हमारे 3 महीने 6 महीने के ट्रीटमेंट के बाद जब फास्टिंग इंसुलिन 10 से कम हुआ हमें दिखता है, तो हम बोल सकते हैं पेशेंट को, देखो यू आर ऑन द राइट ट्रैक। अभी ये मेरी पेशेंट थी 19 ईयर्स की, जिसको बहुत ज्यादा डिप्रेशन आ गया था, क्योंकि सारी ट्रीटमेंट उसने करवाई। अभी लेटेस्ट जो ड्रग आया है ओबेसिटी का, तब वो नहीं था 2 साल पहले, अभी तो बहुत उसका चयन हो रहा है। लेकिन सिर्फ अपने पंचकर्म और गूगल कल्प आरोग्य वर्धिनी भी बहुत हद तक ओबेसिटी में अच्छा काम देती है। त्रिफला गूगल मैंने 3 3 गोली 4 बार ऐसा भी दिया है। और गूगल कल्प का पोदार हॉस्पिटल में हम जब थे तभी एक अभ्यास भी किया है कि हम गूगल कितने मात्रा तक दे सकते हैं, और उसका कुछ भी दुष्परिणाम नहीं हुआ है। तो तभी अंतरकार जी भी थे, हमारे ताथेड़ सर थे, कोपिकर मैडम थी, मेरे खुद के गाइड डॉक्टर इनामदार सर थे। तो हमने लगभग 20 20 30 30 गोलियां गूगल की देकर स्टूडेंट वॉलेंटियर्स पे काम किया है। तो डोज आप प्लीज ध्यान रखिए कि कहीं कम डोज तो नहीं दे रहे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो उसमें, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, तो उसमें हमने 4 महीने में सिर्फ 4 किलो वजन कम कर दिया है। लेकिन ध्यान रखिए, ये पेशेंट मैंने स्पेसिफिकली क्यों यूज की, क्योंकि ये 4 किलो उसके पूरे लाइफ चेंजर हो गया, और अभी वो एमबीबीएस डॉक्टर भी बन गए, लेकिन काम वो आयुर्वेद का रिसर्च का कर रही है। और तभी उसकी कश्मकश थी कि मैं आयुर्वेद करूँ कि एलोपैथिक करूँ, तो एमबीबीएस करके भी आयुर्वेद कर सकते हैं, ये उसने जब समझा, और अभी हमारे साथ जुड़ी हुई है रिसर्च प्रोजेक्ट से। पूरा उसका ध्यान आयुर्वेद रिसर्च पे है। तो ध्यान रखिएगा कि ये 3 महीने के पेशेंट के, इसमें मैंने 20 पेशेंट का ये समराइज आपके पास एक प्रेजेंटेशन रखा है, जिसमें रेगुलर पीरियड आराम से हो जाते हैं। और एपेटाइट जो रक्तात्मग्नि मंद्य से हम देख रहे थे, उसका वेट रिडक्शन भी अच्छे से हो जाता है। सबसे रस धातु स्टेबॉन रहता है, बाकी एक्ने कम हो जाता है, फ्रेशनेस हो जाता है, और टिपिकल पीसीओडी के पेशेंट को शाम को जो थकान आती है वो कम हो जाती है, और ज्यादा से ज्यादा रेगुलर पीरियड्स का
हमें फायदा मिल जाता है पेशेंट का। ये तो ब्रेकिंग ऑफ आइस पीसीओडी पर श्योरली हो जाता है। और वेरी वेरी थैंक्स टू अवर कैस्टर ऑयल आयुर्वेद विजडम। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ऐसे हमने अभी एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया था, आईसीएमआर का रिसर्च प्रोजेक्ट था। एक यूएस बेस्ड डॉक्टर ने किया था, जिसका हॉस्पिटल है कर्नाटका में। और एक केसीआर सिम्स कस्तूरबा हेल्थ रिसर्च सोसाइटी है, उससे है, उसने कंडक्ट किया था ये स्टडी। और डाइट और लाइफस्टाइल, ओनली योगा मेडिटेशन, और उसके पास बाद 3 महीने के बाद सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट्स इन द सिम्टम्स हम डॉक्यूमेंट कर सके थे। हमारे सेंटर में 20 पेशेंट पे ऐसा काम हुआ था। कंटिन्यूस काउंसलिंग, पीसीओडी एंड काउंसलिंग, पीसीओडी एंड काउंसलिंग, और किस तरह हम उसको मोटिवेट करके। अभी रील्स बनाते ना तरह तरह के, तो मुझे ऐसे लगता है पीसीओडी वाला अगर रील बनेगा तो वो बना बोलेगा, वेदर आई एम अ मोटिवेशनल स्पीकर, वेदर आई एम अ काउंसलर, वेदर आई एम अ फ्रेंड टू शेयर योर प्रॉब्लम्स। आप शेयर कर सकते हो, संवाद बढ़ा सकते हो। या तो मैं डाइटिशियन हूँ, या तो मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, या तो मैं पंचकर्म स्पेशलिस्ट हूँ, या मैं एंडोक्राइनोलॉजिस्ट। कुछ सा कंफ्यूज होता है, ये सारा ही चीज हमें करना पड़ता है। लेकिन ये सिंपल प्रोजेक्ट, ओनली विथ लाइफस्टाइल मैनेजमेंट वी कुड गिव द सक्सेस, हाई सक्सेस रेट। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अभी ये भी ध्यान रखना है किस किस ऑर्गन्स पे हमें काम करना है। इंसुलिन रेजिस्टेंस, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, संतर्पणोत्थ, अपतर्पणोत्थ डिसफंक्शन कैसे होता है, तो इसे हम वापस ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। और दिस इज अगेन मास्टर स्लाइड ऑफ माइंड कि डाइट है, बिहेवियर है, जेनेटिक है, स्ट्रेस है, अननोन रिजल्ट्स है, किससे भी धात्वग्नि मांद्य, फिर फर्दर नरिशमेंट, पचन, पोषण और परिवर्तन, 3 शब्दों का गेम है पीसीओडी। विथ माय क्लिनिकल एक्सपीरियंस ऑफ 35 years ऑफ प्रैक्टिस। पचन, पोषण, परिवर्तन। फटीग आ रहा है, कौन सा सेंटर कहाँ क्या काम करना है, वो वैसे वैसे हमें देखना है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारी स्लाइड्स मैं आपको शेयर कर दूंगी, तो आप उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेशन करने की बहुत ज्यादा जरूरी है। संतर परोक्ष में एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स है, रेगुलर मेंसेस है, मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये सारे आप देखते ही हो। बहुद्रव श्लेष्मा दोष विशेष बोला है, आमाशय समुक्त रस विकृति है, अनियमित और अतः प्रवृत्ति और स्थौल्य इसमें ज्यादा आता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जो इंसुलिन टेस्ट से हम मालूम कर सकते हैं, या कुछ हमने एक लिए, तो उसका भी हम फायदा लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अपतर्पणोत्थ में एमिनोरिया और वापस एम, इरिटेबिलिटी और मिल टाइप पार्डनेस आता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। मार्गावरोधजन्य रजक्शय इसमें है, अपान वायु दुष्टि है। अगेन ये पक्वाशी समुत्थ है, इसमें बस्ती का हमें ज्यादा से ज्यादा फायदा होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो इतने डिस्कशन के बाद मुझे लगता है कि आप लोगों से भी कुछ डिस्कशन होगा। जो फर्स्ट स्लाइड हमने देखी थी कि थोड़ा ही चीज ऊपर दिख रहा है, बाकी सारा चीज नीचे है, तो ऐसा हो सकता है पीसीओडी के ऊपर हम विजय मिला सकते हैं, इस आइसबर्ग को उल्टा कर सकते हैं, और आयुर्वेदिक गायनेकोलॉजिस्ट के तहत कुछ नई पहल हम मिलकर कर सकते हैं। क्योंकि आज की तारीख में
आज गर्भ संस्कार का आरोग्य भारती का जो भी मेरे पास दायित्व है, मैं देखती हूँ कि बाला मुग्धा अवस्था की जो लड़कियां है, युवावस्था की जो लड़कियां है, उनका पीसीओडी अगर ट्रीट नहीं होता है तो उनको इंसुलिन रेजिस्टेंस बनता रहता है, बाद में उनको जेस्टेशनल डायबिटीज बन जाता है, उनके बच्चों को एडल्टहुड में डायबिटीज हो जाता है, और उनको भी कभी कभी ये डायबिटीज कंटिन्यू होता है जेस्टेशनल डायबिटीज के बाद भी, और मेनोपॉजल एज में मेनोरेजिया हो जाता है। तो ये सारा क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम हैम्पर कर रहे हैं, और ये प्रेडिक्टिव इलनेस का प्रिवेंशन कर रहे हैं, तो मुझे लगता है पहले तो हमें पीसीओडी का प्रिवेंशन करना चाहिए, और ट्रीटमेंट हमें सही समय पर करना चाहिए, नहीं तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर हमें डायबिटीज को मिटाना है अपने देश से, तो ये जो प्री 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 डायबिटिक कंडीशन है पीसीओडी, उसे मिटाना जरूरी है। ये एक लाइन में मुझे लगता है मेरे सारे क्लिनिकल विजडम का, आयुर्वेद का जो कुछ थोड़ा बहुत मैंने पढ़ा है उसका, ये रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजी, आई मस्ट गिव ड्यू रिस्पेक्ट टू माय मेंटर डॉक्टर रमा वैद्य, डॉक्टर अशोक वैद्य, मेरे गाइड डॉक्टर इनामदार सर, हमारी काठे मैडम, सभी सारे टीचर जिनसे थोड़ा भी बहुत मैंने सीखा है, मेरे पेशेंट जिसने मुझे सिखाया है। तो मुझे लगता है अगर ये हम कर सके तो दैट इज अ सक्सेस ऑफ आवर ओन, लाइक अपने आप से हम ऐसे कन्फेस कर सकते हैं, हाँ मैंने आयुर्वेद पढ़ा और इसका मेरे सोसाइटी के लिए इतना मैंने कर दिया कि मेरे जो भविष्यकालीन बच्चे हैं उनका डायबिटीज मैंने प्रिवेंट किया विद द ट्रीटिंग ऑफ पीसीओएस. So that was the takeaway message from me. Thank you very much. Thank you again for this opportunity. And sorry if something bothersome happened during my lecture. If you could not listen to certain words or anything, you can ask me. And always I am connectable with you all, because Ramdas, always I say to Dr. Ramdas that I respect Ramdas Swami. शहाणे करून सोडावे अवघे जन. So the saint who literally literated us with the science of health baseline, और कोइंसिडेंटली वही नाम लेकर आज हमारे पास गर्जे सर है, वही नाम लेकर 104th सेम इज रियली कमेंडेबल. So I couldn't say no for this because it's really commendable. And अपना ये जो बीज है वो सब जगह फैलाने का, ये जो काम आप कर रहे हैं, ये आपकी जो संस्था कर रही है, उसे कोटि कोटि प्रणाम. और थैंक यू ईच एंड एवरीवन फॉर पेशेंस लिसनिंग. थैंक यू. सो फोरम इज ओपन फॉर द क्वेश्चंस. Thank you so much, ma'am, for such a clinical enriching session, and your valuable guidance and vast experience have greatly enhanced our understanding of PCOD management through Ayurveda. We are truly grateful for your timing and contribute to our Ayurvedic fraternity. As a token of our respect and gratitude, I required our founder president, Dr. Ramdas Garje sir, to kindly present visual memento to our estimated speaker. हेलो. 1 minute. ओके, आई थॉट. Hello, ma'am. There is problem in presenting PPT. नो वरीज, नो वरीज. We are now open to floor for an questions and answer session. Participants are required to mention your name in chat box. Ask the question related to today's topic. Shall I read out and answer, madam? Or Yes, someone ma'am. will read? See, this is 43 years of weight, 73, and menses, regular menses, G2, PLA2,
history of HTN on medication, willing to conceive, 43 years. All patients, all reports are normal except AMH level is low, 0.3. So no ovarian reserve. 43 years also with the HTN, specifically Rasadhatvagni Mandya. Again, I will repeat. And for these, see, older the age, we need more the Rasayan Chikitsa. So less Shodhan and more Rasayan Chikitsa. So Swarnamalini Vasant for management of ovulation, and sometimes yes, Uttarbasti also helps. So Falagrut plus Swarnamalini Vasant orally, Falagrut Uttarbasti, and we need to take detailed history of this patient. But roughly, I think Rasadhatri Mandya need to get treated. So please use Suvarna Malini Vasanta, Shilajit, or Vasanta Kusumakar, whatever Suvarna Kalpa is useful for this patient. तीन पेशेंट में पीसीओडी के मैनेजमेंट का कैसा विचार करें? इट्स रियली वेरी ट्रिकी, आई अंडरस्टैंड, लेकिन हमारे यहाँ तो बोला ही गया है कि जैसे some patients are संतर्पणोत्थ, some patients are अपतर्पणोत्थ. तो क्षय, वृद्धि और उसका सूक्ष्म सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम हम विचार करेंगे, और उसकी जो मैनेजमेंट करनी है तो हमें लेखन चिकित्सा नहीं करनी है, लेकिन बीजो पोषण चिकित्सा करनी है. और थिन पेशेंट्स में मैंने बहुत बार नस्य ट्रीटमेंट्स दी है, और उसमें सीरम प्रोलैक्टिन लेवल एक रूल आउट करना है हमें. हाइपर एंड्रोजेनिज्म बहुत कॉमन है इसमें, तो उसमें नागकेशर मुझे बहुत अच्छा काम उसमें मुझे मिला है. और इसलिए मैं बोलती हूँ कि नागकेशर कभी भी ऋतुकाल में नहीं देना है. वो हाइपर एंड्रोजेनिज्म पे भी हम उसका काम करते हैं उसके लिए. और वो जो नागपुष्पम जो ये है, और रसपाचक का विचार भी हमें, जो कलिंग का पटोलस्य, ये सारे द्रव्य है रसगत ज्वर के लिए, वो थिन इसमें हमें यूज होते. रसगत ज्वर के ट्रीटमेंट और नस्य. फिर रोल ऑफ एरेंडाटेल, रिलीजिंग ऑफ प्रोजेस्टेरोन हार्मोन. ऐसा मैं डायरेक्टली नहीं बोल सकती, लेकिन मैंने देखा है कि 3 दिन तक शुंठी और एरंड तेल हम देते हैं तो एक 6 से 7 दिन में मेंसेस आने शुरू हो जाते हैं. और अपतर्पणोत्थ जन्य जो पीसीओएस है, पाचक पे हमें बहुत ज्यादा काम करना है. अगेन रिपीट, उसका मैं वही करूंगी कि पाचक और अग्नि पर काम करो. प्लीज अग्नि समझो, और प्लीज समझो कि दूसरों को बताना ठीक है कि हम पीसीओडी के लिए अरुगृद्धि देते, कांचना गुगुल देते, कुबेरवटी देते, चंद्रप्रभावटी देते, लिस्ट ऑफ दशमूलारिष्ट अरविंदास हवे. ध्यान रखो, ईच एंड एवरी पीसीओडी पेशेंट इज डिफरेंट. उनकी अग्नि, उनका पित्त, उनका सारी चीज हमें ध्यान देखकर करना है. वो एवरी पेशेंट इज डिफरेंट. डोंट ट्रीट देम लाइक हमने ये फॉर्मूला दे दिया. इसका कोई फॉर्मूला नहीं, यही फॉर्मूला है. मात्रावस्थी सर्चर ऑयल पीसीओडी में चल सकता है? अभी देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है. किसने पूछा? आपका नाम क्या है? यहाँ दिख नहीं रहा है. देखिए, ये जो मात्रावस्थी है, इसके ऊपर मैंने एक डॉक्टर आशीष, मैंने एक काम किया है, डॉक्टर आशीष सर, कि अनुवासन के बस्ती के बाद क्या प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाता है? स्नेह द्रव्य ज्यादा होता है तो प्रोलैक्टिन लेवल बढ़ जाने के कारण क्या वापस एमेनोरिया जनरेट होता है? तो अनुवासन के बाद निरूह बस्ती देना पीसीओडी के लिए, ये मैंने अपने लिए फिक्स कर लिया है. लेखन, ये निरूह जरूरी है. ज्यादा स्नेह, ज्यादा मात्रा, ज्यादा अनुवासन, इसको हम निगेटिव फीडबैक के लिए कुछ तो निरूह या कुछ तो लेखन शोधन करना जरूरी है. क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि सीरम प्रोलैक्टिन या स्निग्ध भाव कुछ बढ़ रहा है क्या, जो दोषों की गुणता वृद्धि बोल रहे हैं. तो ये आपका क्वेश्चन परफेक्ट है कि मात्रावस्थी कितना देना चाहिए, और उसमें हमने फॉर्मूला बनाया है. मात्रा बस्ती के बाद निरूह बस्ती, मात्रा बस्ती कई कई इसमें आमवात में नहीं दे सकते तो लेखन बस्ती. और इसके प्राउड टू शेयर दैट माय हस्बैंड डॉक्टर उदय कुलकर्णी
has like developed kit concept. तो यापन बस्ती है, लेखन बस्ती है, तो उन्होंने जो किट्स डेवलप किए हैं उसका मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है। तो रेगुलर हमारे ऑस्टियोपोरोसिस के जो पेशेंट्स है उनके लिए टिकटक्षीर सर्पी बस्ती 5 और एक निरो बस्ती, ऐसे हर मंथ, ऐसे 3 मंथ का शेड्यूल लगा दिया। फिर जो हमारे डिस्मेनोरिया, पीसीओडी और ओबेसिटी के पेशेंट है उनके लिए लेखन बस्ती का शेड्यूल लगा दिया। फिर जो हर्सिटिज्म, अपतर्पणोत्थ पीसीओडी के पेशेंट्स है उनको मात्रा बस्ती दिया, डिस्मेनोरिया उससे कम हो जाता है प्री मेंस्ट्रुअली देने के लिए, लेकिन उसके साथ 3 मात्रा बस्ती के बाद एक निरूह बस्ती सेट कर दिया। तो इस तरह स्नेह के बाद शोधन ये पीसीओडी में मेरे एक्सपीरियंस में मैंने खास डेवलप किया है। और डॉक्टर अभिलाषा से मेरी बात होती रहती है, तो सचमुच ऐसे प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस जो अपने शास्त्र से हटकर है उसका बहुत फायदा होता है। और रजब प्रवर्तिनी वटी जो है, देखो इसमें कृष्ण रक्त बोल और कृष्ण बोल, ये बोल का हम फायदा करते हैं। रजब प्रवर्तिनी वटी है, कुबेर वटी है, तीक्ष्ण उष्ण ये द्रव्य है। तो हाँ, हम जरूर दे सकते हैं। इसमें कुमारी का भी मुझे अच्छा रोल मिला है, एलोस कंपाउंड जैसे कुछ फॉर्मुलेशंस है। प्रताप लंकेश्वर रस का भी हमने अच्छा प्रयोग किया, हमारी काथे मैडम करती थी। जो सुतिका ज्वर के लिए प्रताप लंकेश्वर यूज करते हैं, तो स्टबॉर्न एमिनोरिया के लिए हमने वो भी किया है, रजब प्रवर्तिनी भी करते हैं। लेकिन पेशेंट वाइज हमें डिसाइड करना चाहिए। जरूर कर सकते हैं रजत प्रवर्तिनी, लेकिन उसका अनुपान आप ध्यान रखिए कि क्या देना है। 3 अनुपान चलते हैं, अरविंदास, दशमूलारिष्ट, या तो फिर कुमारियासव। तो कब दशमूलारिष्ट देना है, कब कुमारियासव देना है और कब अरविंदासव देना है, ये सिर्फ आप ध्यान रखिए। और उसका काल ध्यान रखिए कि कौन से काल में हम रज प्रवर्तिनी दे सकते हैं और कब तक दे सकते हैं। कंटिन्यूस महीना भर देने से कुछ मुझे ऐसे लगा था कि गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन कई कई वैद्य ऐसे देते भी अनुभव से। तो आप पेशेंट गत वो डिसाइड कीजिए। डॉक्टर स्नेहा, आप जरूर दे सकती है। अच्छा लगता है कि सभी जगह से डॉक्टर्स जुड़ते हैं और इतना अच्छा काम कर रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आपके साथ रहना। थैंक यू सो मच। Any more questions? Okay. Thank you so much, ma'am. One more question. 19 years girl, no minutes eat, weight यस। 17 kg, intermittent vomiting, loose motion, USG, PCOD. Took some Ayurvedic treatment before, but no result. What to do? Proper diagnosis is most important thing we need to do before starting even the treatment. See, basically, 19 years old girl with no menarche itself a primary amenorrhea. So primary amenorrhea may be due to some structural defect with tough hymen. तो हमें रूल आउट करना है कि सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए हैं या नहीं, उसका बोन और इसका हमें स्पेसिफिकली रिस्क का ये करके कि उसके पुरुष भाव ज्यादा है क्या, तो वो ध्यान रखना है। उसके ओव्यूलेशन या ओवरीज का कंडीशन क्या है, हॉर्मोन्स का कंडीशन क्या है, ये सारा हमें देख। वॉइस नहीं हो रहा है। हेलो, वॉइस आ रहा है ना मैडम? Yes, ma'am. अभी आए. अभी हाँ। ब्रेक हुआ था। अच्छा, तो विड्रॉल देने के बाद भी मेंसेस नहीं आ रहे तो क्या करें? आयुर्वेदिक मॉडर्न विड्रॉल का विचार करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और देखिए, आई एम वेरी ऑनेस्ट, जेन्युइन एंड ट्रांसपेरेंट विथ यू ऑल। मैं ऐसा नहीं कहना चाहती कि कोई भी पैथी एकदम बेस्ट है वही देते रहो। आप आयुर्वेदिक देते रहो, एलोपैथिक ही करते रहो। आप एलोपैथिक मत करो, आयुर्वेदिक मत करो।
After so many of years of practice, I've realized कि पेशेंट के साथ एम्पैथी रखना और पेशेंट को रिजल्ट देना सबसे इम्पोर्टेंट है. I always give medroxyprogesterone withdrawal bleeding to my patients कि जो अरंड शुंठी को भी नहीं कर रहे, स्टेबॉन कितने भी इसको नहीं कर रहे, और 4 से 5 मंथ हो गए, 6 महीने हो गए हैं, और उसका एंडोमेट्रियम ठीक होता जा रहा है. ध्यान रखो, अगर एंडोमेट्रियम ठीक होता रहे और विड्रॉल ब्लीडिंग न हुआ, तो इसका भावी काल में कैंसरस ग्रोथ में भी परिवर्तन हो जाता है. पीसीओडी में ये अनचैलेंज्ड हाइपरप्लासिया, irregular period, obesity, insulin resistance, ये आफ्टर मेनोपॉज मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जिस केस से मैंने शुरू किया था कि हार्ट रिलेटेड डिसीजेस, कैंसर रिलेटेड डिसीजेस, लॉन्ग टर्म इसका वाइड रेंज इम्पैक्ट हो सकता है. तो वी कैन गिव मेट्रोक्सीप्रोजेस्टेरोन विद द नॉलेज ऑफ प्रॉपर ड्रग एंड उसका कैसे इंटरेक्शन होता है, ड्रग इंटरेक्शन क्या होता है, वो समझकर प्रॉपर डोज में हम जरूर दे सकते हैं. बिकॉज वी आर क्लिनिशियंस एंड वी नीड टू ट्रीट पेशेंट फर्स्ट. Acanthosis nigricans पीसीओडी टोटली क्यूरेबल. हाँ, जब अग्नि चिकित्सा कंप्लीट करते हैं, जैसे मैंने बोला, आयुर्वर्णो बलम स्वास्थ्य उत्पचय प्रभा, वो 15वां जो अध्याय अग्नि चिकित्सा, वो बार बार पढ़ते रहो, उसमें बहुत मजा आता है. और उसमें मैंने देखा कि वर्ण शुद्धि जो होती है वमन के बाद, क्या क्या होता है वासंतिक वमन के बाद, मैडम ऐसा फेस हुआ कि किसी भी फेशियल से इतना क्लियर फेस नहीं हुआ होगा. तो ये जो वर्ण शुद्धि होती है अग्नि अग्नि के ऊपर काम करने से, वो बहुत बहुत ज्यादा मायने रखती है. तो ये उत्साह बढ़ना, प्रॉपर ये करना, स्किन ग्लो, यस, तो होता है वमन के बाद, बहुत पेशेंट्स को होता है. जो अपने इसमें दिया नहीं है वमन में क्या क्या फायदा होता है, स्किन ग्लो, एक्ने जाना, गुस्सा कम हो जाना, क्रेविंग कम होना. देखो कितना बड़ा रिप्रोडक्टिव एंडोक्राइनोलॉजिकल एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि हम पूरे अग्नि पर काम कर रहे हैं वमन के लिए, वसंत ऋतु में स्पेसिफिकली. तभी एपिटाइट, हंगर एंड क्रेविंग, ये 3 अलग अलग सिग्नल्स है. क्रेविंग है विपरीत गुणेच्छा, वो विपरीत गुणेच्छा कम हो जाती है जब भी अंदर से पूरा क्लींसिंग हो जाता है, ये आमाशय शुद्धि नहीं है. तो पेशी पेशी तक हुए माइटोकॉन्ड्रिया को एनहांस करने वाली ट्रीटमेंट है, सूक्ष्म सूक्ष्मतर और सूक्ष्मतम भावों की, कि जिसके कारण ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंच जाती है और उससे उत्साह बढ़ता है, स्किन ग्लो होती है, झगड़े कम होने लगते हैं. ये कहाँ दिया है अपने शास्त्र में, लेकिन ये अग्नि पर काम करता है. यस, एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स भी कम होता है. स्टबॉर्न है, ईयर्स ऑफ द ईयर टुगेदर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, ऑनेस्टली कन्फेशन फॉर एकेंथोसिस नाइग्रिकन्स. लेकिन यस, अग्नि और वर्ण का बहुत नजदीक का संबंध है, तो वो करता है. भ्रामरी Excuse प्राणायाम, me, ma'am. भ्रामरी प्राणायाम, हाँ. HOPSS is work, ma'am. यस यस, भ्रामरी प्राणायाम का जो है ना, ऑफ कोर्स यस, ये जो बोलते क्लियरेंस है ना, नस्य, हाँ, वो करता है क्लियरेंस. मैंने सीरम प्रोलैक्टिन के लिए ये काम किया हुआ है, हमने एक रिसर्च प्रोजेक्ट किया है कि प्रोलैक्टिन लेवल के लिए आद्रक स्वरस का नस्य या फिर भलातक बिंदु का नस्य, तो ये तो कुछ खुलता है डेफिनेटली एचपीओ एक्सेस, यस. और भ्रामरी प्राणायाम तो डायरेक्टली स्ट्रेस रिलैक्स करता है. एचपीओ एक्सेस के ऊपर हम हमेशा बोलते हैं कि इमोशंस, साइकोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी है, SEM, और उससे बाद में माइंडसेट ठीक होने के बाद एचपीओ हाइपोथैलेमस चालू होता है. तो यस यस यस, ऑफ कोर्स भ्रामरी प्राणायाम है, अनुलोम विलोम प्राणायाम है, ये सारे प्राणायाम हमारे एंडोक्राइनल रीसेट के लिए बहुत फायदा करता है, हार्मोनल हार्मोनी के लिए. हमने योग निद्रा पे भी एक अच्छा काम किया है इसके लिए. ऑफ कोर्स नस्य वर्क्स, ऑफ कोर्स वर्क्स. योग, आहार विहार, अभी तो हमने योगा पे एक पूरा 3 महीने का
20 पेशेंट पे काम भी किया है सिर्फ ये देकर, तो अच्छा उपयोग हुआ है। एनीथिंग एल्स? मुझे लगता है क्वेश्चंस Yeah, खत्म हो गया है। excuse me, ma'am. Excuse me, ma'am. यस। हाँ मैम, वो जो प्राइमरी अमेनोरिया के बारे में आप बता रहे थे ना, 19-year-old हाँ लेकिन हाँ। अमेनोरिया है, तो उसको सेकेंडरी हम्म। सेक्सुअल कैरेक्टर सब डेवलपमेंट है। ओके। और तो तो फिर मैम हाँ, तो आगे क्या? आप मुझे पर्सनल भी डिस्कस कर लीजिए। यहाँ मैं 3 पॉइंट आपको बताना चाहूंगी कि जब यस। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप है, तो नंबर 1, कभी कभी 19-20 तक मैंने देखा है कि पीरियड्स आते हैं, तो शांति ओके। रखना है, एरंड शुंठी का प्रयोग करना है, रसदात्मक निमांड पे काम करना है, वेट लॉस पे काम करना है, आहार विहार मार्गदर्शन करना है, ये सारा चीज है। लेकिन इसके साथ रूल आउट करना है, तो ये हाइमन तो टफ नहीं है। इसके कारण कभी कभी हाइमन टफ होता है, इसके लिए महीना रेगुलर आता है लेकिन वो बाहर ब्लड दिखता नहीं है, ऐसा भी मैंने केसेस देखा है। तो वो आप देखिए, तो वो जेनेटिक या असाध्य नहीं है अगर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक डेवलप हुए हैं। और इसमें काश्मीरी कुटज घृत का प्रयोग बोला गया है भाव प्रकाश ने, कि जो अरजस का योनि व्यापक पे काम करता है। तो काश्मीरी कुटज घृत का हमने कापोदार हॉस्पिटल में ऐसे तोड़कर उसका प्रयोग किया था, तो आप वो देख लीजिएगा। और पर्सनल भी मुझे आप डिस्कस कर सकती है, इसमें कुछ वाह। कुछ फॉर्मुलेशंस ऐसे हैं जो डिटेल यहाँ नहीं बोल सकते है ना, क्वेश्चन आंसर्स श्योर करने पड़ेंगे। श्योर, थैंक यू मैम। Uh, Thank you so much, ma'am, for such a enriching session. Now we encourage all participants to become active member of MAS and stay connected with our CME activity, academic discussion, and professional opportunity. To formally conclude today's program, I invite Dr. Abhilasha Parade, coordinator of MAS Mumbai, to present vote of thanks. Good afternoon, everyone. On behalf of MAS, myself, Dr. Abhilasha Parade, Coordinator MAS, Mumbai Suburban, take this opportunity to express my sincere gratitude to everyone who contributed to the successful completion of today's CME. First and foremost, I extended my heartfelt thanks to our respected speaker, Professor Dr. Madhura Kulkarni ma'am, for delivering such an insightful, clinically relevant, and practical sessions on PCOS. Your depth knowledge of and rich clinical experience have truly enriched all participants and will greatly benefit Ayurvedic practice. Thank you, ma'am. I would also like to express my deep gratitude to our Dr. Ramdas Garde sir, founder, president, MAS, who always support us, whose vision and leadership continue to inspire us every time. Special thanks to the dedicated organization team, Dr. Seema Garze ma'am, convener for excellence coordination, Dr. Ganesh Pajai sir, Dr. Varsha Kamath ma'am, Dr. Sharvari Deshmukh ma'am for registration and management, Dr. Harshal Kautikar and Dr. Arshana Baviskar for smooth conducting of today's CME. Last but not the least, heartfelt thanks to all the participants and delegates from across the India. Your active participations, enthusiasm, and thoughtful interaction are the true strength of MAS. We look forward to your continued support in our upcoming academic activities and CME programs. Jai Ayurveda, Jai MAS. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you everyone. Thank you everyone for joining today's session and also joined us 18th April for specialized session on woman karma. And we are honest to host Vaidya Dilkula Tambole sir for this insignificant online lecture. Don't miss it. We are required to all participants to complete mass registration and follow mass on social media platforms such as Facebook, Instagram, and WhatsApp for regular update. Stay connected, stay updated, and stay academically active with mass. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Abhilasha madam. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Bye. Thank you, ma'am.